Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we start your new chapter, the chapter ninth, natural vegetation. Okay, so in this chapter today we discuss only introduction part of the chapter and factor affecting the different type of natural vegetation, which factor that affect the natural vegetations. Okay, so this chapter is very important for you. So we start this chapter, natural vegetation. So first of all, introductions. Human life on the earth is possible because of bounties of nature. So what is the meaning of bounties? Means abundance. जो हमारा नेचर है उसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. ओके, एंड बी ऑब्टेन अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम नेचर. द मोस्ट प्रीसियस अमंग द गिफ्ट, यू नो, टू नेचर ने बहुत सारे गिफ्ट जो है प्रोवाइड किए हैं. ओके, और अमंग द ऑल द गिफ्ट में से सबसे जो मोस्ट प्रीसियस जो था वो कौन था आपका? सॉइल, water, wildlife and vegetations. Okay, so means we obtain a variety of substance, different type of things we get from the nature. Okay, and out of that the most important, yeah, we can say precious among the gifts of natures are soil, water, wildlife and vegetations. Okay, so beside these, the nature has provided us with the hidden wealth of mineral and power resources. मीन्स इस नेचर ने हमें सम गिफ्ट जो है वो हिडन फॉर्म में दिए, लाइक मिनरल या पावर रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. ओके, ये सारे के हैं हिडन फॉर्म में है. सो ऑल दिस गिफ्ट ऑफ नेचर आर टुगेदर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो सम टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुट होता है कि व्हाट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज. all these gift means soil, water, wildlife, vegetations, mineral, power resources. These are all the gifts together we call natural resources. Those are provided by the nature. Okay, and among the natural resources, flora and fauna are perhaps the most important for human being. अब ह्यूमन बीइंग के लिए जो गिफ्ट हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, out of that which one for most important for human being? That is a flora and fauna. Flora means plant, means your vegetation, or fauna means your animal. Okay, so these two gifts are most important for the human being. Okay, अब क्वेश्चन नेक्स्ट आपका राइज होता है कि व्हाट इज द नेचुरल वेजिटेशन. ओके, सो नेचुरल वेजिटेशंस रेफर टू अ प्लांट कम्युनिटी which has been grown naturally without human aid. Means सिंपल डेफिनेशन क्या है? दो आर ग्रोन विदाउट ह्यूमन एफर्ट. जो प्लांट कम्युनिटी जो है ग्रो कर रही है विदाउट ह्यूमन एड. एड मीन्स एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट के बिना जो ग्रो हो रही हो. ओके, किसी ह्यूमन हेल्प के बिना जो चीज ग्रो हो रही हो, जो चीज नेचुरली अकर हो रही हो, उसको होते हैं नेचुरल वेजिटेशन. वही बात लिखी है कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू अ प्लांट कम्युनिटी which has been grown without human aid. means grown naturally without human aid या human effort के बिना जो चीज ग्रो हो रही है, and has been left undisturbed by the human for a long time. और human being की उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई रोल नहीं होता काफी लॉन्ग टाइम तक. ओके, means those are grown very we can say naturally without human effort. उसको तो natural vegetation. So vegetation of an area is an important component of the natural environment. vegetation means एक important component है natural environment का. okay, plant provide us a lot of product including food and fiber. कि means plant हमें different type of things हमें provide, different type of product we get from the plants. okay, so if we talk about India, तो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो
मेगा बायोडाइवर्सिटी की मीन्स वहां पर डिफरेंट सबसे ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैसे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, जहाँ प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज है वो पाई जाती हैं। ओके, अभी इफ यू टॉक अबाउट दी 12 कंट्रीज, तो 12 कंट्रीज कौन सी है? मैक्सिको, सेकंड कोलंबिया, थर्ड इक्वाडोर, फोर्थ पेरू, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स्थ जायरे, सेवंथ मेडागास्कर, एट्थ चाइना, नाइन्थ मलेशिया, टेंथ इंडिया, 11th इंडोनेशिया एंड लास्ट वन ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर द ऑल द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज हमें मिलती हैं। ओके, इट हैज अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इन आवर कंट्री। इंडिया में क्या है? हैज अ वैरायटी ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है। ही भी टॉक अबाउट जो एस्टिमेटेड है ये अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज है इन अवर कंट्री। ओके, और ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी इट हैज बीन रैंक 10th इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में 10th रैंक है अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पीसीज, एंड द फोर्थ इन द एशिया, फोर्थ रैंक है इन एशिया में। ओके, सो और 12 कंट्रीज कौन से हैं? वी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कौन सी कंट्रीज है 12। ओके, सो द ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं ड्यू टू दैट हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और एनिमल्स मिलते हैं। ओके, एंड सेकंड ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि विच फैक्टर दैट अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन या फ्लोरा एंड फोना। ओके, so these are the point, there are 5 point: temperature, sunlight, soil, relief and precipitation. Okay, temperature you know to all, sunlight also, soil, relief means your landform features, whatever mountains, plain, plateaus. Okay, precipitation means falling of water in any form, जो ऊपर से स्काई से जब वाटर नीचे आता है, इट मे बी लिक्विड फॉर्म में, इट मे बी सॉलिड फॉर्म में, किसी फॉर्म में नीचे आ रहा है। ओके, इसको प्रेसिपिटेशन मींस we here talk about for the rainfall. So temperature, we talk about temperature, how temperature affect the या we can say flora and fauna या natural vegetation. So temperature and humidity are the important factor which determine the character and extent of vegetation. That means कि temperature and humidity both are play an important role for the different type of vegetation on the slopes of the Himalayas and the hill of Peninsula. Here we talk about India. इंडिया के बारे में बात हो रही है, और इंडिया में मेन जो माउंटेन्स एरियाज हैं वो आपके कौन से? हिमालयस रीजन एंड सदर पार्ट ऑफ इंडिया में पेनिनसुला मींस वेस्टर्न घाट। ओके, सो ऑन द स्लोप, दिस इज स्लोप of Himalaya and the hills of Peninsula above the height of 900 मीटर, मीन्स ऐसी हिल जिसकी हाइट 900 मीटर से ज्यादा हो, वहां पर टेम्परेचर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ एंड चेंजेस इन द different type of growth of vegetations. Okay, so how temperature play important role we discuss here, just see. So above the height of 900 meter, the fall in temperature affect the types of vegetation and its growth. A fall in the temperature, that means according to height, when we move upward side your temperature decrease होता है। okay, if we go upward side 165 मीटर तो नियर अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिक्रीज होता है। ओके, इफ वी गो अवर साइड 1 किलोमीटर तो नियर अबाउट 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस होता है। तो मीन जिसकी ऐसा माउंटेन जहाँ की हाइट मोर देन 900 मीटर है, वहाँ टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द अफेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन और ग्रोथ को। ओके, सो एंड these mountain areas change it from tropical to subtropical after that temperate and alpine. So we discussed last line according to this diagram. This is a mountain, this is a foothill point, means जहाँ से mountain start हो रहे, here आपका क्लाइमेट कुछ और होगा, यहाँ जो होता है क्लाइमेट वो अबाउट
ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट होता है, मीन्स हाई टेम्परेचर होता है। एंड व्हेन वी मूव लिटिल बिट अपवर्ड साइड, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो सब ट्रॉपिकल, थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। एंड व्हेन वी मूव अपवर्ड साइड, सो टेम्परेट टाइप क्लाइमेट, और है अल्पाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, इसको समझना जरूरी है, पर इसको बात करें समझ लेते हैं थोड़ा सा। विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, दिस योर अर्थ सरफेस एंड इट इज इक्वेटर, टॉप ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। एंड टॉप हियर 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ये 90 डिग्री साउथ पोल। सो those area lie between the 0 to 10 degree north or 10 degree south, the between part is called tropical zone. You can say tropical area, equatorial temperature, and near about 30 to 35 between आपका जो एरिया होता है वो सब ट्रॉपिकल होता है। ओके, एंड ऑफ दैट हियर टेम्परेट होता है। तो यू नोट ऑल कि इन द ट्रॉपिकल जोन सर इज ऑलवेज वर्टिकल पड़ती है, दस में टेम्परेचर टू मच हाई होता है। एंड सब ट्रॉपिकों में थोड़ी सी स्लाइटिंग पड़ती है तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेट में मीडियम सी पड़ती है तो मॉडरेट होता है। एंड हियर बिल्कुल स्लाइटिंग पड़ती है तो यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बिल्कुल लो होगा। ओके, सो मीन्स क्या है कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द पोल फ्रॉम द इक्वेटर, your temperature decrease. Okay, and rainfall also decrease when we move from equator to pole. Okay, so वही बात यहाँ लिखी है, जो टेम्परेचर जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे आपके जो माउंटेन्स हिली एरिया है वहां पे भी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हाइट डिक्रीज होता है। इन द फुट हिल पार्ट में आपको ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट मिलेगा, एंड लिटिल बिट हाइट पे जाके सब ट्रॉपिकल, और हाइट पे जाओगे तो टेम्परेट, और सबसे टॉप पे चले जाओगे तो एल्पाइन। एल्पाइन मीन्स ये नियर अबाउट मोर देन 3300 मीटर हाइट पे मिलता है, और यहाँ पर नथिंग ग्रो देयर, कुछ भी ग्रो नहीं होता, बिकॉज एरिया लैंड जो है वो आइस से कवर रहता है ऊपर। ठीक है, और अल्पाइन एरिया होता है जहाँ कुछ भी ग्रो ना होता हो। ठीक है, तो उसको होता है अल्पाइन पार्ट। ओके, और इस पूरे पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फर्दर वीडियो में। ओके, सो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? ड्यू टू दैट योर हिली एरियाज में, स्लोप ऑफ माउंटेन्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। दैट मींस कि टेम्परेचर जो होता है आल्सो अफेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस। इफ वी टॉक अबाउट हियर, तो हियर डिसीडीज फ्रेश ज़्यादा मिलते हैं जहाँ ट्रॉपिकल हो। ठीक है, एंड यहाँ बात करें यहाँ पर सब ट्रॉपिकल की, तो यहाँ पर डिसीडीज हैं, लेकिन टेम्परेट की बात करें तो यहाँ पर लाइक देवदार, जो कॉनिकल शेप के जो होते हैं कॉन्फ्रीज फॉरेस्ट होते हैं, कॉन्फ्रीज वो फाउंड होती है यहाँ पर। ओके, अल्पाइन में यहाँ स्मॉल बुशेस। ओके, so according to high temperature decrease हो रहा है, according to that your vegetation also changed. Okay, so now next point, sunlight. So sunlight also play an important role. So the variation of the sun radiate the energy at different place is due to the difference in latitude, altitude, season and duration of the day. You know all every earth पे जो sunlight होती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वो रिसीव करता है। ओके, तो यहाँ बात कर हो रही है कि सन तो अपनी तरफ से हीट को रेडिएट कर रहा है। ओके, लेकिन अर्थ पे डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर प्लेस विच लैटिट्यूड पे है, कितनी अल्टीट्यूड पे है, कौन सा सीजन चल रहा है और ड्यूरेशन ऑफ द डे। ओके, अब लैटिट्यूड पे कैसे इफेक्ट करेगा, जस्ट सी इफ एनी प्लेस लाई ऑन द इक्वेटर, तो यू नो टू ऑल कि ऑन द इक्वेटर सन रेज फॉल वर्टिकली, तो दैट्स व्हाई दैट प्लेस डायरेक्ट सनलाइट रिसीव करेगा, तो ड्यू टू दैट यहाँ टेम्परेचर हाई होता है। ओके, इफ एनी अदर प्लेस दो लाई ऑन द नियर द आर्कटिक सर्कल, तो यू नो तो यहाँ पर सनलाइटिंग पड़ती है तो वो लेस हीट रिसीव करेगा। तो सनलाइट के अकॉर्डिंग भी आपकी वेरिएशन है, बिकॉज जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ प्लांट इज फास्टली ग्रो करते हैं, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी वो स्लो करते हैं। ओके, सो लैटिट्यूड आल्सो अफेक्ट द सनलाइट। सेकंड, अल्टीट्यूड मींस हाइट, अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सनलाइट भी उसके अकॉर्डिंग होती है। ओके, एंड सीजन, इफ समर सीजन गोइंग ऑन तो वहां पर मैक्सिमम हीट गेट करेगा, इफ विंटर सीजन गोइंग ऑन तो वो लेस हीट रिसीव करेगा, अकॉर्डिंग दैट वहां पर वेजिटेशन ग्रो होगी। ओके, एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, डे लॉन्ग है या शॉर्ट है, इफ डे इज लॉन्गेस्ट तो मैक्सिमम हीट ऑब्जर्व करेगा, इफ डे शॉर्ट है तो मिनिमम हीट वो रिसीव करेगा। क्लियर? सो ड्यू टू दिस अवेयरनेस ऑफ सनलाइट, ट्री ग्रो फास्टर इन समर। जब जितना सन हीट लाइट ज्यादा पहुंचेगी उतनी फास्टली ग्रो करेंगे आपके प्लांट। ओके, एंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, सो प्रेसिपिटेशन डिटरमाइन
द डेनेस्टी ऑफ वेजिटेशन, डेनेस्टी मीन्स अब ट्री क्लोज होंगे, जो आपकी जो ट्री है ये क्लोज होंगे या फार अवे होंगे, एक दूसरे दूर होंगे। ये डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन के ऊपर, ओके, कि रेनफॉल कितनी हो रही है। ओके, इफ योर रेनफॉल हैवी होगी सो डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, डेंस मीन्स टू मच क्लोज। आपने बात की होगी कि इक्वेटर में आपने देखोगा नियर अबाउट अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, और हम एशिया की बात करें और फिलीपींस और इंडोनेशिया के नियर अबाउट ट्रीज होते हैं मोस्ट डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ओके, बिकॉज हियर सनलाइट भी मोर होती है और हैवी रेनफॉल होती है। ओके, थ्रू आउट द ईयर्स, तो दैट्स व्हाई यहाँ मोस्ट डेंस फॉरेस्ट एरिया है। तो जितनी हैवी रेनफॉल होगी और जितनी सनलाइट होगी उतनी ही प्लांट ज्यादा ग्रो होंगी। ओके, जितनी लेस होगी उतनी वो लेस वेजिटेशन होगी। तो वही बात है ना कि एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरिया। ओके, एंड नाउ soil. तो soil is one of the most important factors affecting the vegetations. You know तो कि vegetation ये plant जो grow करने हैं by the soil करने हैं। If soil जो fertile तो fast grow करेंगे, if your soil less fertile तो according to that वो grow करेंगे। Okay, so soil is the one of the most important factor affecting vegetation. Different type of soil have different vegetation. So different type of सॉइल में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो होती है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट यू नो तो कि इन डेजर्ट रीजन वी टॉक अबाउट, तो वहां पर थॉर्नी प्लांट जो होते हैं वो ज्यादा ग्रो करते हैं बिकॉज वो ड्राउट एरिया में इजिली स्टैंड रह पाते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग दैट जैसी सॉइल होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर वेजिटेशन ग्रो होगी। ओके, एंड चेंजेस इन द सॉइल कंडीशंस हैव गिवन राइज टू peculiar types of vegetation in many areas such as mangrove forest, swamps and sandy coastal forest। means according to that, according to soil जैसा structure होगा उसके according ही आपकी vegetation grow करेगी। clear? So this is your next point, your fourth point soil, and last one point fifth, relief features. So it is the another important factor affecting the vegetations. Plain, plateaus, and mountains have different type of vegetation. We already talked about mountains. कि mountain according to high temperature decrease होते हैं, according to that your vegetation in foothills mountain में आपकी tropical होगी, when we move little bit upward side तो subtropical होगी, when we move upward side तो temperate type climate मिलेगा, and when we move topmost part वहाँ पर alpine means nothing grow there. Okay, सो वैसे अभी टॉक अबाउट प्लेन्स, प्लेन्स में अगर फर्टाइल लैंड है तो वहाँ पर क्रॉप्स टू मच होगी। क्लियर? सो इफ वी टॉक अबाउट प्लेट्यूज, अकॉर्डिंग टू दैट प्लेट्यू लोकेशन, अकॉर्डिंग दैट वहाँ पर वेजिटेशन होगी। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर फीचर्स प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप ऑफ structure for the plant. Okay, so this is the topic we discuss here. First of all we discuss here introduction part of the natural vegetations. First of all important things here कि what is the natural resource, and after that what is the natural vegetations, and after that this one the most important part, it is the one of the 12 mega biodiversity countries of the world, or which one 12 countries, and out of that India has 10th rank in the world and 4th rank in Asia, and which factor that affect the natural vegetation. So the temperature, sunlight, soil, relief and precipitation. और sometimes questions यहाँ से भी only one point को भी पूछ सकता है कि how precipitation affect the natural vegetation. Okay, and sometimes question put on the like this कि how temperature and sunlight affect the natural vegetations. Okay, तो किसी भी वे में यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। Okay, so thank you बेटा, and further part of this chapter we discuss next video. Okay, thank you.